Hello, everybody. This is Gaurav Singh here on the Kriya Show. This is my first episode of my personal podcast, a podcast I always wanted to do for, I would say, maybe more for my own sake, for my own heart and for my own soul. When I like maybe a 70 or if I gonna live that long, I would love to watch these videos and the connections and yeah, I think the amazing human beings I have had a great privilege to say my friend or to say my family or thing beyond. So my first episode I waited for. I know we both waited for this to record for some time. He's a he was my college buddy. We used to go gym together. We used to. I remember those days when we go gym. Then we come and eat those paneer and whatever. I think I always used to kind of yeah. I think we like look like same. And then he had a unfortunate incident which got him, I think, call it the fall for him. And then he defied all that fall, and then he came back strongly. Then you can't even imagine. He's our Indian team captain of rugby for wheelchair. He's my friend. He's my buddy, whom I wanna met and just get inspired from him. Let me welcome Mr. Nikhil Gupta to my first episode of the Kriya Show. Nikhil, welcome, buddy. Welcome, dear. Thank you so much, Gaurav. It's my pleasure, and thanks for such a lovely introduction. So yeah, hopefully this is your first episode. Really sure it will go well. या एंड आई थिंक हम थोड़ा सा हिंदी में भी आ जाएंगे। आई थिंक हम लोग जो No problem. Yeah. दिल की जो बात है वो हिंदी में ज़्यादा आएगी, और हम लोग बात भी कर रहे थे निखिल भाई की कैसे करना है। तो आ, अभी भी हम सोचते और बोलते हिंदी में ही हैं। तो आई थिंक वी विल ट्राई टू मिक्स एंड मे बी हिंदी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, एंड होपफुली आवर ऑडियंस वुड लाइक इट। तो निखिल भाई, मे बी बिफोर आई वी गो इन टू द होल जर्नी, Yeah. maybe Yeah. just maybe just introduce yourself, like who you are. If I somebody asks you who you are, maybe I will let you uh, tell Yeah. that Well, I that version from your side. I go with the name Nikhil Gupta. So I stay in Ghaziabad. It's near to Delhi in India, and right now I'm working in Oracle as a principal software engineer, and I'm currently captain of wheelchair rugby team of India. I have represented in 4 international tournaments, and we regularly conduct national championships. And I was crowned Mr. Wheelchair India in 2015. That was first time such a wheelchair Mr. Wheelchair India was conducted in India. So I was the first Mr. Wheelchair in India. And I am married to a very beautiful girl named Shelda Walia. I stay with my family. I have a big brother, my bhabhi, and a very cute nephew. So yeah, that's my side. And I have met the entire family, and I think I totally agree with it. Yes, The amazing yes, family, a cute nephew, and then amazing wife. So, yeah. so Nikhil भाई, I think शुरुआत से शुरुआत करें। कितना वापस जाएं हम, मतलब मुझे कॉलेज के डेज से हम जानते मिले हैं। वही हमारी मेमोरी बहुत पुरानी है, तो हाँ, अगर आप काफी शुरू करें पुराने। शायद बिल्कुल 2001 से शुरू करना पड़ेगा, आई थिंक। या 24 साल, 24 साल हो दो जाएंगे। 24 साल हो जाएंगे. दोज वर द गोल्डन डेज. Yeah. तो बेस्ट ऑफ कॉलेज की आवर बात करें तो हम दोनों ने पढ़ाई करी है आईआईटी लखनऊ, एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है लखनऊ में। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच. वन ऑफ द प्रीमियम आई वुड से इन यूपी में अच्छा यस, कॉलेज माना जाता है। तो हम दोनों सेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ने किया साथ में आईआईटी लखनऊ से 2001 से 2005 के पास पांच. आउट। और और हमने सेम कंपनी में जॉब भी लगी थी, राइट? बहुत कुछ सिमिलर रहा. सिमिलर रहा है। एक ही हमारा हॉस्टल था, हाँ, तो हमारी काफी सारी चीजें एक साथ थी. जिम, और उसके बाद कई बार घूमना, साथ के ट्रिप्स, तो वो सब मेमोरीज तो हमेशा साथ रहेगी. तो जिम याद है? अगर वापस चले तो वो राम राम बैंक में जो जिम था, कुछ उससे कुछ मोमेंट्स याद है भाई? मुझे तो याद है। बिल्कुल नहीं, एक एक मोमेंट याद है. कॉलेज से निकलना, फिर उसके बाद सबसे पहले जो हमारा चौक था वहां पर कुछ राम राम एग बैंक। खाना. हाँ, हाँ, एग राम राम खाना बैंक या और कुछ हम्म, सारा. फिर उसके बाद जिम शुरू कर देना, और फिर एक दूसरे को हेल्प करना. तो सब हम्म, कुछ काफी बहुत पॉजिटिव था उस टाइम तक. हम्म। अच्छा था. तो सेम बैच में थे हम लोग, साथ में शाम को जिम करते थे। और फॉर ऑडियंस वी आर सेइंग निखिल, अभी हम कह रहे हैं निखिल इज ए व्हील चेयर, बट ही वाज लाइक यू आर ऑल वेल ऑन दैट टाइम अगेन, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू रिमाइंडर, बट
एक हमारे जो फॉल की हम बात करेंगे क्या हुआ था, बट जिम साथ में करते थे हम लोग, सेम बैच। बिल्कुल। और हम एक बार कहीं घूमने गए थे, उस पर कुछ हम लोग बात करें, मेरे कुछ पिक्चर्स भी हैं, मैं आई विल ट्राई टू ऐड इनटू समवेयर इफ आई कैन। हाँ, वो जो पिक्चर्स हैं, आई थिंक 70 to 80 पिक्चर्स, वो अमेजिंग ट्रिप था भाई। तो लेट्स लेट्स गो बैक देयर इफ यू वांट टू। वही उस समय मेरे को ध्यान है, शायद हम लोग का कॉलेज एग्जाम कुछ पोस्टपोन्ड हुए थे, एंड वी वर हमारे जूनियर्स ने भी हमें ज्वाइन किया। तो हम लोग का कुछ 8 से 10 मेंबर्स का हमारा ग्रुप था, और हम लोग ने एक पूर्णागिरी, यूपी में ही एक मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, वहाँ का हम लोग ने ट्रिप किया था। और बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था, सारे दोस्त एक साथ होना, उसके बाद वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन करना, और फिर जो मेन चीज थी कि नीचे एक रिवर थी, और हम हम्म। लोग लास्ट तक सोच रहे थे कि यार कोई वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, और बस वही एक यंग माइंड कि नहीं, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। और हम लोग ने पता नहीं कैसे कैसे रूट पर, स्लिपरी रूट्स पर, कोई ट्रैकिंग, प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं थी वो, पर हम लोग ने बस हाँ। एक स्लिप करते हुए बिल्कुल नीचे चले गए थे। और फिर उसके हाँ। बाद भी वो गंगा जी में नहाना, वो तो एक, हाँ। बस ऐसा लगता है कि आज तक अगर वो मोमेंट एकदम आंखों के सामने आ जाता है, और हम लोग बस उसको ही रिकॉल करते हैं, कभी उस मेमोरी को फिर से जीना बहुत ही अच्छा लगता है, सारी वो बातें सोचना। तो अभी आप जैसे आप बता रहे हो निखिल भाई, तो मुझे पूरी वो सारी फोटोज एंड आई हैव दोस पिक्चर्स में भी। यस, मैं इवन मे आई हैव। somehow मैं कहीं पे दिखा पाऊंगा, बट अभी आई एम स्टिल फिगरिंग आउट द होल, दिस इज माय फर्स्ट एपिसोड, बट आई विल ट्राई टू ऐड इट इफ आई कैन। बट भाई वो जैसे आपने कहा कि वो हम पूर्णागिरी मंदिर गए, दर्शन किए माता जी का, फिर हम जब वापसी की बात है, वापस आ रहे थे, फिर बिल्कुल, हमें वो वापसी। नीचे हमें रिवर दिखी काफी नीचे। बहुत नीचे थी, और हाँ, मतलब कोई इतना भी पूरा रास्ता नहीं। स्टीप, ऐसे स्टीप था पूरा, राइट। बिल्कुल, और हम बिल्कुल। लोग 8-10 लोग कुछ थे, सारे बच्चे यंग बिल्कुल, आई नो 19-20 साल 21 साल। कोई हाँ। हल्का सा भी नहीं सोचा कि कुछ भी मिसहैप हो सकता था। और हाँ। इवन आई गेस एक फ्रेंड थोड़ा सा स्लिप किया भी था, पर वो हम हम्म। लोग सब साथ थे, तो हमने उसको हम्म। होल्ड कर लिया था। तो हम्म। बहुत रिस्की था। अब सोचते हैं तो शायद हाँ, अब हम लोग ना करें, ना करते जिस हैं। एज में हम लोग हैं। पर उस समय हाँ। वो सोचना ही, हम लोग के लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती थी ना, हम लोग को लगता ही नहीं था कि हाँ कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, जो भी सामने आएगा सब कुछ कर सकते थे। तो आई विल टोटली एग्री, मतलब मैं उस उसको तो मैं अपने वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से एडवेंचरस या एडवेंचरस। डेंजरस एक्ट में तो इंक्लूड करूंगा, क्योंकि हमें बिल्कुल। एक तो था वापस, एक तो था नीचे जाना, ठीक है, वो तब भी हम्म। आसान है, आप ऐसे ऐसे करते करते मतलब हाँ, करके नीचे नीचे चले तो गए। दूसरा था वापस आना, ऊपर हम। वो और डिफिकल्ट था क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। और मुझे याद है कोई कोई बीच में कोई बाबा कोई तो मिले, हम लोग आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि देखो यहाँ से चले जाओ, राइट, क्योंकि रास्ता भी नहीं था। बिल्कुल। हाँ, वो हाँ, भी मुझे पूरा सीन याद है। वही तो, पतले पतले कुछ भी जो भी पेड़ आ रहे हैं, हाँ। हल्का फुल्का पकड़ के, और बस कैसे हम लोग चढ़े वापस। अब सोच के तो लगता है कि क्या क्या आई हम थिंक लोग माता करते रानी जी थे। की कृपा थी, और आई थिंक वी आर ऑल फाइन। बट वो पिक्चर्स है अमेजिंग पिक्चर्स, मैं फ्लैश में आंखों में, आई थिंक आपकी भी फ्लैश हो रही है इस टाइम पे। बिल्कुल। निखिल भाई ऐसे कर रहे हैं, यू हम इधर खड़े हैं पानी में ऐसे, आई डोंट नो। वो- वही पानी से पहले से ही बहुत प्यार तो पानी, आपने बोला पानी से बहुत प्यार था, और आपने तो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द फॉल देन निखिल भाई। आई थिंक वो आई था। थिंक यस। एक ऑडियंस के लिए, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है मे बी आई डोंट थिंक दे वुड नो। तो भाई कॉलेज से जॉब लगी हमारी, आई थिंक पहली कंपनी विप्रो में थी, हम लोग हैदराबाद में भी साथ में ही थे, आई थिंक वहां पे भी हम साथ में थे। वो वही टाइम बहुत पूरा, कुछ कॉमन है। हाँ, बाइक में घूमना उमना वो सब चीजें मुझे भी याद है, मोमेंट। वो हमारा नया ऑफिस बना था विप्रो का, आई बिल्कुल। थिंक गच्ची बावली कहाँ पे था। हाँ। हम्म। फिर भाई, फिर ये जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद से आई थिंक पता नहीं, मे बी शायद बैंगलोर आ गया था, कुछ तो था, तो आई वाज नॉट इन टच विथ यू। तो भाई लेकिन आई नो इट्स लिटिल बिट हार्ड फॉर यू, बट यू वाना लाइक क्या वो क्या हुआ उसके fall and then maybe then you come back. हाँ, that unfortunate night. So I went to party with my friends at a resort in Bangalore. It was on outskirt. तो सडनली हम लोग सभी अराउंड 20-24 मेंबर्स का हमारा ग्रुप था, और हम लोग सब पार्टी कर रहे थे। फिर सडनली किसी के बस ऐसे ही एक आइडिया आया कि यार स्विमिंग पूल भी है, लेट्स हिट इट। और हम लोग हमारा फ्रेंड सर्कल जो था, हम लोग हैदराबाद से गए थे, मैं और मेरा एक फ्रेंड है Mm, सुमित, mm, हमारे mm, साथ ही आईटीसी बैच का ही है। तो mm, हम दोनों बैंक हैदराबाद से गए थे, वहाँ पार्टी चल रही थी। फिर सभी लोग धीरे धीरे स्विमिंग पूल में जाने लगे, एंड आई यूज टू लव स्विमिंग। तो बस मन किया कि चलो चलते हैं। पर था क्या कि हम लोग जैसे हैदराबाद से गए थे, वी वर वेरी टायर्ड,
और फिर उसके बाद ये था कि फिर हम लोग को आई गेस नेक्स्ट डे ही हम लोग को रिटर्न भी होना था। तो हम लोग ने सोचा यार अभी इतना नहीं करते, वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी एग्जॉशन हो चुका है। तो हम लोग ने बस बैठे हुए थे, मैं और सुमित, और बाकी लोग सब एंजॉय कर रहे थे। और फिर पता नहीं कहाँ से एक मेरे को स्विमिंग ट्रंक दिखाई दिया। मैंने कहा यार ठीक है यार, अभी ये ट्रंक भी मिल गया है, चलो कर ही लेते हैं। और मैंने बस वो ट्रंक चेंज किया, और नॉर्मली मैं जैसे अंडर वाटर स्विमिंग करता हूँ, माय मिस्टेक कि मैंने डेप्थ चेक चेक नहीं किया कि वो रिसॉर्ट है और वहाँ कितना शैलो होगा। आई यूज टू Mm, swim in a pool which was around 18 feet depth. तो mm, ये काफी शैलो था। सो मैंने जब डाइव किया तो आई हैड हेड ऑन कोलिजन, और मैं mm, अंडर वाटर ही उस पूल के दूसरे कॉर्नर की साइड निकल गया था। बाकी मेरे फ्रेंड्स फ्रंट में ही थे, फर्स्ट कॉर्नर में थे। तो काफी देर हो गया, मेरे फ्रेंड्स ने देखा कि यार मैं बिल्कुल दूसरे कॉर्नर में एकदम उल्टा लेटा हुआ हूँ, और कोई मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा है। देन दे रियलाइज्ड कि समथिंग हैज हैपेंड टू मी। तब उन लोग ने मेरे को लिफ्ट किया, और इवन जब मैं हिट हुआ था मेरा, तब आई वाज अनकॉन्शियस दैट टाइम। बट थोड़े मोमेंट के लिए मेरे को थोड़ा सा मेमोरी है कि व्हेन आई वाज अंडर द वाटर, आई वाज इन अ शेप ऑफ फ्रॉग, both my hands and leg were folded. I was trying to come out of that water, but I was not able to. तो तब मेरे को कुछ रियलाइज हुआ कि समथिंग हैज हैपेंड टू मी। कोई बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा था। एंड देन लकीली मैं फ्लोट हुआ ऊपर को। फ्रेंड्स ने फिर मेरे को बाहर निकाला। इवन देन जब वो लोग मेरे को थोड़ा सा सीपीआर दे रहे थे, तब उसके बाद मैं उन आई वॉज जस्ट क्राइंग विद पेन, और मेरे को अपने लेग्स फील नहीं हो रहे थे। आई फेल्ट लाइक माई लेग्स वर फ्लाइंग इन एयर। तो मैं उनको बोल रहा था कि मेरे पैरों को किसने उठा रखा है, इनको नीचे क्यों नहीं रख रहे। तो उन लोग को लगा शायद पानी बहुत चला गया है। और ये जो रिसोर्ट था ये आउटस्कर्ट्स में था, तो वहाँ इतना एम्बुलेंस को कॉल करना भी इतना इजी नहीं था। इट वाज अराउंड इन द नाइट, अराउंड 12 AM। तो फिर एक ऑटो सडनली आता है बाहर से, और मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि यार अभी मेरे को तो बिल्कुल पेन बेयर नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऑटो में ही चलते हैं। तो ऑटो में मेरे फ्रेंड्स लेकर गए हैं मेरे को। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल बेंगलोर गए। वहाँ पहुँचने तक आई वॉज अनकॉन्शियस। तो बस फिर क्योंकि एक अगर आप कुछ भी, इट वॉज वेरी सीरियस, तो ऑपरेट होना था। ऑपरेट होने के लिए हम लोग के किसी फैमिली मेंबर्स का ब्लड रिलेशनशिप का वहाँ होना जरूरी होता है, और मेरे पेरेंट्स यहाँ गाजियाबाद में थे, तो mm, इतना सडनली उन लोग को आना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट लकीली मेरी कजिन है, सिस्टर, वो वहाँ रहती थी। तो मेरे फ्रेंड को पता था, उसने मेरे मोबाइल से उनका नंबर लिया, उनको कॉल किया। देन शी केम टू डिड ऑल द फॉर्मेलिटीज इन हॉस्पिटल। और फिर उन लोग ने फिर उसके बाद स्टिल आई गेस 24 आवर्स के बाद मैं ऑपरेट हुआ था। और उस पूरे टाइम तक मैं अनकॉन्शियस था, मेरे को कोई कुछ नहीं होश था। देन जब ऑपरेट हो गया था उसके बाद, व्हेन आई वाज इन आईसीसीयू, तब मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, जो सर्वाइकल लेवल पर है, C5 C6। बॉडी मूवमेंट्स नहीं हो रहे थे, हैंड वाज नॉट मूविंग, लेग्स वर नॉट मूविंग। तो बस एक वो था कि मैं अपनी नेक मूव कर सकता था, इधर से उधर देख सकता था, बाकी हर जगह ट्रिप लगा हुआ था। तो आईसीयू में बस बेड पे लेटा हुआ और लोगों को देख रहा था, बस वेट कर रहा था कब मेरे पेरेंट्स आएंगे, कब कोई फैमिली मेंबर आएगा, मेरे को थोड़ा सा बताएगा मेरे साथ क्या हुआ है। देन माय मदर एंड फादर केम, एंड दैट वाज द हार्डेस्ट मोमेंट when my mom was crying. I was not aware what has happened to me. I thought it's a normal fracture, so it may take around 3 months to maximum 6 months. फिर मेरी एक सिस्टर है, शी इज अ डॉक्टर। देन शी told me, see Nikhil, this spinal cord injury is not curable. You have to live with it, and it may take very long time. So I said, how much? She said, not sure, maybe 5 years, maybe 10 years. I was thinking long time means 1 year. So when she said at 5 years, 10 years, I thought, yeah, what has happened is just a fracture, right? So
Then it was tough. It was really very, very tough. I was 25 years at that time. Then I was, after 10 days, I was shifted to a private ward. So then my physiotherapy started for the first time. And then doctor said that, see, you are from Delhi. There is a very good hospital in Delhi which is specialized for the spinal cord injury, Indian Spinal Injury Center. So better you shift there and start your rehabilitation over there. So even my father was working. So we came back to Delhi after 15 days, and then my rehab started. And then we took it for 1.5 months. But actually, like my father was staying with me, and he was working in a bank, so even he couldn't take so many leaves. So we had to shift back to our home. Then I started my rehab at home only. So things were not going very well. Had I was totally dependent on a attendant, and now you see, attendant के साथ रहना, मतलब मैं अपने जैसे हमारी कॉलेज लाइफ देखी होगी, मेरा तो बस होता था कि मैं कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ पूरे टाइम पर, कभी हमारा प्लेसमेंट ऑफिस है, तो हम्म। मेरे को मेरी जो लाइफ थी रही है, वो बस ये थी कि मेरे को दूसरे के लिए कुछ करना है, या मैं हमेशा फोर फ्रंट में रहता था। अभी क्या हो गया था कि डिपेंडेंट, अगर मेरे को उठना भी है तो अटेंडेंट चाहिए, पानी पीना है तो अटेंडेंट चाहिए, कुछ खाना है तो अटेंडेंट चाहिए। मीन्स हर मोमेंट पे आप फुल्ली डिपेंडेंट हो। आई वॉज बेड रिटन फॉर अराउंड 1.5 year। ठीक है, उस मोमेंट पे हर चीज अब कोई आपके हेल्प के लिए कभी है कभी नहीं है, तो आप फिर रियलाइज करने लगते हो कि योर लाइफ इज नाउ अ बर्डन। तो दे वर वेरी लो मोमेंट्स। कभी फील भी होता है उस टाइम पर कि दिस इज नॉट वर्थ लिविंग। तो टफ टाइम था। पर उसके बाद में पेरेंट्स पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स सभी बहुत क्लोज रहते थे, सब पूरे टाइम मेरे पास बैठे रहते थे। उनको भी लगता था कि यार इसके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स ना आए, क्योंकि जब आप एक अपनी 25 years, आप बिल्कुल अपने प्राइम पर हो यूथ के, और आप चाहते हो कि आप ये एक्सप्लोर करोगे, आप वहां जाओगे, फिर आपको सडनली फील होता है कि आप कंप्लीटली बेड रिडन हो, आप तो खुद हिल भी नहीं सकते हो, आपकी लाइफ में अभी पता नहीं क्या आगे होने वाला है, जब आपको कुछ क्लियर नहीं है। Then I started learning about spinal cord injury on online. I saw there are many other accessories which we can use. Okay, people like me who are not able to use their hands, not able to grip anything, तो उनके लिए काफी सारी एसेसरीज थी जो यूएस में अवेलेबल थी। और वहाँ की काफी मैंने क्वाड्स के क्वाड्रप्लेजिक कहलाते हैं, who have all four limbs impacted। So there are two categories in spinal cord injury. One is called paraplegic, one is quadriplegic. So I'm in quad category. तो फिर उसके बाद में ये था कि मैंने कुछ यूएस के मेरे फ्रेंड्स थे, उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया। एंड देन आई मेट जोनाथन सिकवर्थ, who has definitely changed my life. So it's a different new chapter. So yeah, that's about my injury. आई थिंक जोनाथन पे आएंगे। आई थिंक जब Yes, होमवर्क कर रहा था yes. तो उनका नाम आया था, एंड देन इवन और भी Uh, चीजें तो उस पे आई थिंक हम लोग बात करेंगे, कैसे उन्होंने इंस्पायर किया, एंड देन कैसे आपने टीम बनाई, एंड देन whatever you yeah, did, I think, which is like I don't know, a truly inspiring story. बट yes, इससे पहले हम yes. लोग भी कुछ बात कर रहे थे जब पहले रिकॉर्डिंग के, तो आपने बोला था Yeah. कि आपको शायद ये पता था कि आपके साथ ये होने वाला है। तो उसकी बात क्या निकल भाई, क्योंकि लोग मतलब ये पता नहीं वो गुड और बैड, बट सो कुछ बताइए जो मतलब जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि मतलब काफी लोग यू। बिलीव करते हैं, काफी लोग नहीं बिलीव हम्म। करते। सो व्हेन हम्म। आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मेरी भी जैसे कुंडली थी, तो मेरी ताई जी हैं, उन्होंने मेरी कुंडली एक बार दिखाई थी। और मेरे को पहले से वार्न किया गया था कि पानी पानी से रिलेटेड कुछ इंजरी मेरे को हो सकती है। और मेरे को मतलब था तो मेनली यही था कि किसी जैसे हम लोग गंगा जी में जाते रहते हैं या फिर स्विमिंग पूल, यही दो ऑप्शंस थे। तो पहले एक मेरा 2006 में एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बारिश के टाइम पर था। तो उसमें मेरा पूरा राइट साइड ये सब पूरा छिल गया था उस समय। और वो एक साइन था कि शायद मेरे को थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। पर जैसे बोला कि हम लोग को लगता है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेट्स डू इट, देखा जाएगा जो होगा। तो बस वो मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी। एक और मेरा फ्रेंड है,
तो उसके मैं ब्रदर की मैरिज में गया था, तब वहां पर भी मेरे को एक बार बताया गया था कि माई लाइफ इज लाइक अ फ्लक्चुएटिंग ग्राफ। अभी जैसे मैं उस समय कॉलेज में था, हम लोग का जॉब लग गया था, तो इट्स ऑन अ हाई, एंड देन समथिंग विल हैपन इन नियर फ्यूचर, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी स्टीप लो। तो वो एक इंफॉर्मेशन थी कि कुछ होने वाला है नियर फ्यूचर में, एंड देन इट हैपेंड। 2005 में हमने बीटेक खत्म किया, हमें बिल्कुल। जॉब लगी साथ में विप्रो में, हैदराबाद में। मैं वापस शायद बैंगलोर आ गया था 2007 में। ये बात 2008 की है भाई, राइट? Art here, 2008 March, and I was in, like you said, we were in Wipro. So 2007 August मैंने Wipro से switch किया था Oracle Softwares में, तो it was around 4 to 5 months only. And ऑलरेडी ओरेकल luckily, ओरेकल ऑलरेडी आप ओरेकल में थे उस टाइम पे? yes, तो and अभी that भी आप was ओरेकल में ही काम करते हो? उसमें भी बिल्कुल पूरी कहानी है, तो हम लोग बात करेंगे कितना मतलब अच्छा जो भी है तो। बिल्कुल ओके। बिल्कुल, ये एक लकी पार्ट था कि I switched to Oracle. ओके, अगेन वी आर नॉट ट्राइंग टू लाइक, ये पर्सनल स्टोरी है, इसमें कोई ये नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी, हाँ ये हमारा सब नहीं यहाँ पे मोटिव नहीं है, बट हाँ मतलब एक वो एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहा है आपकी लाइफ में कि द सपोर्ट यू गॉट व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग एंड बेड रिडन। यस। एंड अभी भी आप ओरेकल में कितने साल हो गए भाई फिर? 2007 से 25 हाँ, 18, हाँ 18 years, 18 years. 18 ईयर। ओके, एंड स्टिल गोइंग वेरी वेल। ओके, तो हम Yes, थोड़ा सा उसका भी yes. टच करेंगे भाई। तो बिल्कुल 2008 में फिर आई थिंक तभी मैं शायद, क्योंकि मैं टच में शायद नहीं था, क्योंकि मैं शायद दिल्ली आ गया था 8 में, आई स्विच टू आईबीएम, फिर मैं उधर था, फिर मैं भी शायद मैं भी यूएस आ गया था। तो ओके। तो मैं भी सोच रहा था, आपने पानी की बात की तो मैं कहा एक पानी का हमने वो किया अपना पूर्णागिरी में, वो भी पानी ही था, राइट? वो भी वो बने। भी हमने रिस्क लिया था, बट बिल्कुल। फॉर्चुनेटली वहां पे हम सब सही रहे। फिर आपने एक पानी की बात करी कि आपको एक्सीडेंट हुआ, फिर ये तीसरा कह सकते हो भाई कि अम, मेजर। ये जो मेजर था, हाँ। तो ऐसा कुछ थॉट आता है कि ऐसे ठीक है, अभी आप इंस्पायरिंग जो भी कर रहे हो, अगर ये ना हुआ होता तो कुछ और कर रहे होते, या जो होने से अभी आप जो कर रहे हो उसकी जो आई नो जो जो भी है आपके अंदर, मतलब कि आई नो, तो क्या सोचते, कुछ थॉट उसमें आता है भाई निखिल भाई की, मतलब अगेन दिस इज लाइक ऑल हाइपोथेटिकल कि ना हुआ होता तो लाइफ में आदमी बहुत कुछ सोचता है, एक लेकिन लाइफ में जो फील होता है, शायद बीटेक में हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, पर हम्म, बीटेक ने हम लोग को ना एक बहुत लाइफ लेसन दिया था, जो खासकर आईआईटी लखनऊ में हम लोग की रैगिंग हुई, फिर मैनी इंसिडेंट हैपेंड हाँ रिगार्डिंग बट दैट रैगिंग रैगिंग हम आल्सो। लोग बुरा मानते हैं, लेकिन हम अच्छे में बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे, हाँ तो हाँ, भाई हाँ 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 नहीं, इट्स डेफिनेटली नॉट गुड, हाँ। पर कुछ जो लेसन्स थे कि इट हम्म, मेड मी वेरी टफ। बोले तो क्या क्या लेसन, मतलब जैसे मुन्ना भाई बोलता, बोले तो भाई क्या? लोगों ने रैगिंग ली होगी, हम हम्म लोगों को रैगिंग की वजह से कॉलेज से निकलना पड़ा था। अच्छा, तो एक मुझे इंसिडेंट हैपेंड, इंसिडेंट जो हुआ था, या ठीक है, हम लोग अनफॉर्चुनेट सेकंड जैसे। सेकंड ईयर में थे, एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट अच्छा, आपका भी हुआ। नाम था उसमें, मैं भूल गया था। ओके। उसमें मेरा नाम था, 8 बच्चे थे, हम्म और हम लोग को कॉलेज में इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ पुलिस कंप्लेन हुआ है। वी वर नॉट हम्म डायरेक्टली इन्वॉल्व, हम्म पर क्योंकि जब कोई भी इंसिडेंट होता है, तो उसमें कहीं से कोई भी अगर नाम होते हैं, 8 हम्म बच्चे हुए थे जिनमें से सिर्फ एक एक लड़का इन्वॉल्व था, और हम्म उसने अपने बचने के लिए और लड़कों के नाम दिए। तो हम्म उनमें जैसे मैं, सचिन जैन मेरे साथ था जो हम्म फर्स्ट सेमेस्टर टॉपर था, हम्म एंड आई वाज सेकंड सेमेस्टर टॉपर। तो हम दोनों के उसने नाम दिए, क्योंकि उसको ये था कि अगर हम लोग निकलेंगे तो वो भी निकल जाएगा। उसी हम्म तरीके से कुछ 8 लड़के फंसे थे, और हमारे कॉलेज सीनियर्स ने हम लोग को इन्फॉर्म किया कि कुछ पुलिस केस हुआ है, तुम लोग अभी थोड़ा यहाँ कॉलेज से हॉस्टल में मत रुको, यहाँ से जाओ बाहर, बाहर किसी हम्म और लड़के के साथ रुक सकते हो। तो हम लोग किसी एक फ्रेंड के घर रात में रुके हुए थे, और मॉर्निंग में हम लोग ने जब एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें फ्रंट पर उस पूरी डिटेल्स थी, क्योंकि अ, जो आपका नाम था उसमें, पेपर में नाम लिख उस के है? न्यूज़पेपर, तो पहला पहला जो मेरा नाम आया था, वो इस तरीके से न्यूज़पेपर में नाम है कि इन लड़कों को किसी केस में अब अभी कितनी इनके उम्र ऊपर है हम लोग की? 18 19 20 साल की रही होगी उम्र, राइट? फर्स्ट सेकेंड ईयर की बात है, बिल्कुल। सेकेंड हाँ, ईयर की बात। सेकंड सेकंड ईयर। तो 19 20 साल या हाँ, 18 18 में भी, हाँ, या 17। ओके। बस तो वो यही था कि इस तरह से कॉलेज ने शायद बहुत ठोक ठोक कर टफ हम्म बनाया, इस तरह के हम्म इंसिडेंट बिल्कुल शुरू में दिखाए,
और फिर जब भी हम लोग के कुछ ईयर एंड होता था, कोई सेमेस्टर्स एग्जाम होते थे, उसके बाद ये फिर केस एकदम से पहले तक बंद रहता था और फिर ये केस निकल कर आ जाता था। मेरी फैमिली ने बहुत ट्रबल हुआ उस चक्कर में। काफी लोगों ने, जैसे जब ये था कि हम लोग के अगेंस्ट केस हो गया था, तब पापा को भी काफी लोगों ने बोला कि हम आपके बेटे को निकाल देंगे, आप इतने रुपए दो, उतने रुपए दो। वो अपनी सारी लाइफ सेविंग कुछ एफडीज वगैरह तोड़ के वो रुपए देने जा रहे थे। और फिर मेरे को पता चला, मैंने उनको बोला कि मैं अकेला नहीं निकल सकता हूँ, अगर निकलेंगे तो ये सारे 8 लोग निकलेंगे। और लकीली उसके बाद में जो एक बंदे की वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ था, उसको उसके अगेंस्ट पे चार्जेस गए और हम 8 लोगों को फिर उससे रिलीज किया गया। पर ये था, पूरे 3 साल तक वो सारा टेंशन चलता रहा जब तक हम अच्छा लोग वो कॉलेज से नहीं। अच्छा पूरा हाँ, चला है वो 4 साल तक, मुझे नहीं वो पता था। 4 साल तक नहीं, वो किसी को भी नहीं पता चलने दिया गया था। वो हम आठ अच्छा। लोगों के ही बीच में रहता था, हमारे अगेंस्ट केस हुआ था, फिर हम लोग ने लॉयर हायर किया था, वो पूरा सीबीसीआईडी में केस किया था। और उसके बाद में फिर एक और मेंबर था जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ हम्म, था, एक हम्म, हमारा साथ का, उसको फिर रस्टिकेट किया गया था कॉलेज से। हम्म, तो ये सारी चीजें थी, टफ टाइम था वो भी। तो बस यही है कि उस कॉलेज लाइफ ने, स्टार्टिंग की रैगिंग ने बहुत ज्यादा मेरे को ओपन किया। मैं अगर मैं कहूँ तो जैसे अपने पूरे टाइम पर हम लोग घर ही रहे हैं, घर पर ही पढ़ना, सब कुछ करना है, ऐसा बाहर की बहुत ज्यादा लाइफ नहीं देखी थी। कॉलेज में भी आया तो फर्स्ट ईयर इतना हॉरेबल था मेरे लिए। पर उस समय मेरे साथ सचिन था। सचिन 1 साल प्राइवेट कॉलेज करके आया हुआ था, तो उसको ओके। इस चीज का आइडिया था, तब उसने मेरे को काफी हेल्प किया। अदरवाइज मेरे लिए ये सब चीजें देखना, रैगिंग करना डेफिनेटली किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, मेरे लिए भी नहीं था। पर उसने जिस तरह से मेरे को बताया कि क्या क्या ट्रिक्स हैं, हम लोग हर चीज में कैसे नेगेटिव में एक पॉजिटिव निकाल सकते हैं, वो उसने मेरे को सिखाया। और वही एक लाइफ लेसन रहा है मेरे साथ कि हर नेगेटिव में से एक पॉजिटिव कहाँ से निकालना है, कैसे रखना है। ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। आपका वो जो आप कह रहे हो कि नेगेटिव में से भी पॉजिटिव देखना, आई थिंक आजकल हमें, अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2001 की, 2 की, और अभी 20-25 साल हो गया, पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया। हम लोग इतने बड़े बड़े फोन आते थे, लैंडलाइन फोन था, अभी दिस द वर्ल्ड हैज चेंज। बट अभी भी जब बच्चों से बात करता हूँ आज, निखिल भाई, तो मुझे लगता है कि आज का वर्ल्ड तो और ज्यादा, मतलब वो मेंटल और अभी से स्ट्रेस बहुत है, अगर ज्यादा हम है। देखें। मतलब हम लोग वही बच्चे थे, हम मैं भी, जैसे आपने बोला कॉलेज की बात करी, तो मुझे याद है मैं भी जो आज हूँ, आई थिंक आई क्रेडिट टू माय माय बीटेक, दैट 4 साल जो हमने बीटेक किया आईआईटी लखनऊ में, इट मेड मी, आई वुड से, फ्रॉम बॉय टू, होता नहीं मैन बनाना, आई थिंक वो, आई वाज अ शाई किड, हम लोग डरना। का हाँ, मैच्योरिटी लेवल, अगर हम लोग सभी कहें कि हम लोग को एक जो मैच्योरिटी लेवल हुआ है हमारा, वो हाँ, कॉलेज आकर हुआ है, जहाँ हम लोग सारे लाइफ लेसन्स जो होते हैं ना, अगर पूरा एक 4 साल में निकल कर आता है तो वो ये है। बीटेक के थ्रू जितना कुछ चेंज हुआ है, वहाँ हॉस्टल लाइफ में रहना, किस तरह से उसको हैंडल करना, फिर एग्जाम्स के, फिर उसके बाद में जब जिस तरह से हमारा प्लेसमेंट था, कंपनीज में इंटरव्यू देना, वो सारी चीजें हैंडल करना, तो मेरे को लगता है कि बीटेक सिर्फ एक आपको सिर्फ एक पढ़ा नहीं रही, सिर्फ एक हम्म, इंजीनियरिंग नहीं करा रही, आपको लाइफ लेसन्स बहुत दे। उस हॉस्टल लाइफ को हर किसी बच्चे को एक बार हॉस्टल लाइफ जरूर दी। जाना चाहिए हॉस्टल लाइफ, जाना है। बिल्कुल। क्योंकि आप देखो ना, स्पेशली मुझे लगता है कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, आई थिंक इवन स्पेशली इंजीनियर्स, आप देखो कि इंजीनियर्स मतलब बीटेक के बाद कुछ और ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि दे आर इनटू द बिल्कुल इंजीनियरिंग। तो मैं आपको एक बिल्कुल। और बताऊं जो मुझे पता चली अभी, क्योंकि हम लोग का ग्रुप है भाई, आप भी हो, हाँ। कि आई डोंट नो इफ यू वॉच बिग बॉस, मे बी फॉर दिस फॉर द ऑडियंस। बिग हम्म। बॉस में अभी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है। अ, वो वो जो गर्ल आई है वो आईआईटीएन है, हमारे कॉलेज की है। ओके, आई एम नॉट दो अवेयर। बहुत 2013 पास आउट, कंप्यूटर साइंस, आई थिंक मालती चाहर, शी इज सिस्टर ऑफ, आई थिंक द दीपक चाहर बॉलर जो है। दीपक चहर। ओके हाँ, उसकी जो बहन है वो अभी गई है वाइल्ड कार्ड, वो अपने कॉलेज से पढ़ी हुई है। तो मैं कहा यार, ओके। इंजीनियरिंग करने के बाद अपने कॉलेज के, मतलब हर जगह के आप देखो, को लोग कुछ भी कर रहे हैं, कोई कोई आईएएस बन गया है, कोई कोई आईपीएस बन गया है, कोई एक्टर है, कोई अब्दुल कलाम जी के साथ काम किया है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। कोई आई थिंक जयशंकर जी की टीम में है। तो पता नहीं, तो वो जो बीटेक है ना, वो कुछ तो कर देता है वो 4 साल, वो पता नहीं, मतलब वर्ल्ड को जीतने की, मैं और मे बी, वही बोल रहा हूँ ना, सिर्फ हम लोग को इंजीनियरिंग नहीं सिखाई जाती, बहुत कुछ सिखाया जाता है उसमें। तो वो लगता है भाई जितने उसने फिर आपको, पैंडेमिक्स था और ये सारी उसने हेल्प चीजें थी, किया आपको, आई थिंक आपके जो बहुत राइज बहुत। में। हाँ, मेरे को मैं जैसे बता रहा हूँ कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था, तो इनिशियली 1.5 years उसके साथ कोप अप करना बहुत टफ था, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो, पर अगर आपका बॉडी मूवमेंट ही नहीं हो रहा, आप सोच रहे हो कि मेरे को अभी उठना है,
मेरे को कुछ करना है एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट, वो बहुत टफ होता है उस चीज को गो थ्रू करना। आपने एक मूवी देखी होगी गुजारिश, ऋतिक रोशन ने उसमें एक हम्म, स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट का रोल प्ले किया था। हम्म, उससे काफी कुछ हर कोई रिलेट करता है हम लोग। एक सीन था उसमें उसके सर के ऊपर पानी गिर रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता, वो पानी गिरता जाता है और वो सिर्फ हम्म, अपनी नेक ही मूव कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हम लोग की भी लाइफ काफी उसी तरीके से हो जाती है। और फिर उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है वो सिर्फ यही नहीं है कि आपको एक इंजरी होगी, उस इंजरी के साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। यू हैव लॉस्ट योर यूरिन कंट्रोल, यू हैव लॉस्ट योर ब्लैडर बॉबल कंट्रोल, और फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके साथ ये एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर हम लोग का स्वेट ग्लैंड्स वर्क करने बंद हो जाते हैं, तो उस समय आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज हो टेम्परेचर लो हो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो इस तरह की बहुत डिफिकल्टीज थी 1.5 ईयर 2 ईयर्स। मेरे को बिल्कुल मैं किसी तरह से अपने आप को बस ये था कि मैं जी ही रहा था और मेरे को कुछ भी नहीं मैं कर पा रहा था, बहुत टफ था। देन this life changing moment happened. I met Jonathan Sigler. He introduced me to wheelchair rugby, and then everything has changed now. तो From आपने being a dependent person, now we are training other quadriplegic, other wheelchair users to be independent on wheelchair. तो भाई वो मतलब ये आपका खुद का विल था कि मतलब as आपने बोला कि आप हमेशा इंडिपेंडेंट रहे हो, लीडर रहे हो, और ये जो बीटेक ने आपको 4 साल सिखाया है, क्योंकि अ, अभी तो चलिए फिजिकल एक्सीडेंट हुआ एंड देन यू लॉस्ट योर लिम्स एंड एवरीथिंग, बट अभी लोग नॉर्मल सब कुछ सही होने के बाद भी इतना मेंटल वो हो जाते हैं, तो मतलब क्या था, मतलब दिस इज मोर अबाउट हाउ यू हैव बीन रेज्ड, हाउ हैव यू लिव्ड योर लाइफ, या मतलब क्या था, मतलब ठीक है आप मिले जोनाथन से, बट दैट इज Hmm. मोर ऑन यू आल्सो, राइट, कि मतलब आपके अंदर वो चाह थी, तो वो कुछ ऐसा मैसेज देना चाहोगे भाई, मतलब जो आज के बच्चे हैं या जो भी है, मतलब 20-22 साल के 19 साल के हैं, जॉब नहीं लग रही है या कॉलेज में मतलब बीटेक में मन नहीं लगता, या मतलब वट एवर इट इज लाइक, मे बी आई डोंट नो, शादी मन की नहीं हो रही है, जो भी मेंटल इतना प्रेशर लेके बैठे हैं कि दे थिंक अबाउट कि भाई मैं लाइफ ही वर्थ नहीं है, तो आपने तो मतलब peak देखा हुआ है, you were all fine, then you fall, and then you still had the will to come back and rise and now inspire others and then lead others. You are a Indian rugby captain for the team of the wheelchair. तो भाई वो क्या है, मतलब ऐसा क्या आप बोलना चाहोगे कि no matter what the life should go on, right? तो क्या मतलब क्या डेफिनेटली था आपका? डेफिनेटली। बस जैसे मैंने बोला कि वो मोमेंट्स थे जब अंदर से एक बार को बहुत डिप्रेशन था, पर फिर एक बार मन में मेरे फील हुआ कि यार अगर मैं ऐसे ही हार मान के बैठा रहूंगा तो शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, एक बार एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई और इससे फाइट करके देखते हैं कि जितना मेरे साथ हुआ है क्या मैं उससे कुछ रिकवर कर सकता हूँ। फिर जैसे जैसे मैंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में जितनी मेरे को नॉलेज मिलती रही कि हम किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, हाउ टू डू योर डेली कोर्स। फिर बाहर और लोगों से मिलना शुरू किया, हर किसी से एक पॉजिटिव निकाला कि हम्म, अगर कोई और लड़का है, अगर वो कुछ और कर रहा है तो क्या मैं भी वो कर सकता हूँ। हर हम्म, जैसे मैंने बोला कि एक बस माइंड में एक वो पॉजिटिव आउटकम कैसे निकाल सकते हैं, हर कहीं से कैसे निकाल सकते हैं, वो एक माइंड में था कि अब मेरे को अपनी नेगेटिविटी को कम करना है, हर जगह से कुछ पॉजिटिव ढूंढना है। तो और लोगों से मिलना शुरू किया, जितना ज्यादा कम्युनिकेट किया और लोगों से मिलना शुरू किया तो हर कहीं से कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चीज निकल के आती थी कि अच्छा ठीक है ये ऐसे कर रहा है, ये इस चीज को, जो चीजें मैं नहीं कर पा रहा वो दूसरा किस तरीके से हैंडल कर रहा है। तो वो सारा मैंने फिर उनसे ग्रैप्स करना शुरू किया। मैंने काफी फिर मैंने फिर से आईएसआईसी जाना शुरू किया। अभी पहले एज ए रिहैब जाता था, अभी मैं वहां जाता था कि मैं वहां देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि बाकी okay, लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग किस किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हम्म, देन वी वर इंट्रोड्यूस टू व्हीलचेयर रग्बी। और जब मैंने फर्स्ट टाइम व्हीलचेयर, एक रग्बी की हम लोग की स्पोर्ट्स व्हीलचेयर डिफरेंट होती है, मैं फर्स्ट हम्म, टाइम उस पर बैठा, वो बॉल को होल्ड करना और एक हाँ, टैकल करते हुए वो गोल हाँ, करना। तो वो लाइफ का जब फर्स्ट टाइम मैंने गोल किया तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने वो मोमेंट था कि मेरे को फील नहीं हुआ था कि मैं आई एम डिसेबल्ड एंड आई एम ऑन व्हीलचेयर। तो बस वो वहां से एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट शुरू हुआ। तो जब आपका जब रिसर्च करा था उसमें आया था सेंटेंस या जो कोड आया था कि यू सेड यू फॉरगॉट यू हैड एन इंजरी व्हेन यू just did your first throw, right? Huh? Yes, that was Okay. the moment. So I was like just jumping.
ऑन व्हील चेयर की आई हैव स्कोर्ड अ गोल। तो वही मेरा पर्पस अब लाइफ का ये है कि हर व्हीलचेयर यूजर को उस तरीके से रियलाइज करवाना कि यू कैन डू इट। लाइफ में अभी बहुत कुछ है, किसी भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कुछ भी अपना एजुकेशनल उसको कंटिन्यू करो। तो वो सारी चीजें बाहर निकलो, जितना अभी हमारे यहाँ इंडिया में उतना एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हम्म, मेट्रो सिटीज काफी एक्सेसिबल हैं स्टिल, अगर हम देखें जितना टायर 3 सिटीज हैं, टायर 2 सिटीज हैं, वो अभी उतने एक्सेसिबल नहीं है। उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, उतना ज्यादा रिहेबिलिटेशन नहीं है। तो मैक्सिमम व्हीलचेयर यूजर कुछ टाइम पहले तक, अगर मैं कहूँ 2008 में जैसा मेरा हुआ था, मैक्सिमम ऐसा होता था कि वो लोग प्रेशर सोर हो जाते हैं, और मोस्ट अराउंड 30 to 40% of spinal cord patient, even polio patient, they die because of these pressure sores। हम्म, घर पर लेटे हुए हैं, कोई उनका केयर करने वाला नहीं है, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते, और उनको हर किसी को बस ये होता है कि ठीक है अब ये लाइफ होगी, हम्म, somehow we have to end it। हम्म। और वही सोर्स हो जाते हैं अलग अलग, यूटीआई होते हैं, काफी सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं इसके बाद में। तो बहुत काफी टफ लाइफ है स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स के लिए। तो विल, आई थिंक वो आपके अंदर की विल है, आपके अंदर की पावर है, राइट? लाइक फाइंड अ पर्पस एंड फाइंड अ व्हाई, देन मे बी बस कनेक्ट विद अदर्स, राइट? लाइक मतलब भगवान का कुछ मतलब, अगेन इट कैन बी कंट्रोवर्शियल आल्सो, मतलब भगवान को आप अ, बोलते हो कि मेरे साथ क्यों किया, ये सोचते थे उस टाइम पे, या ये था कि नाउ यू फील लाइक कि मे बी आई डोंट नो, सो आई नो, ऐसा कुछ आप वो सोचते हर हैं थोड़ा? हर क्योंकि देखो, कुछ किसी के साथ बुरा होता है तो वो अपने पेरेंट्स को ही कंप्लेन करता है कि आपने मेरे हम्म, साथ ऐसा किया। हम्म, और हम्म, कहीं ना कहीं मैं 100% गॉड है, उनको हम्म, मानता हूँ कि वो भी हमारे सबसे ज्यादा क्लोज हैं हम लोग उनके। हम्म, तो अगर हमारे साथ कुछ होता है तो पहला ब्लेम हम उनको ही करते हैं। फिर धीरे धीरे रियलाइज भी होता है कि ठीक है, अगर कुछ हुआ है तो शायद उन्होंने सोच के किया है, आई एम द चूजन वन। वो फिर फील होने लगता है कि पहले लाइफ का कोई पर्पस नहीं था, आई हैड नो एम्स, वी वर जस्ट लिविंग। ओके, कुछ अपना आया, घूमा फिरे, खाए पिए, खत्म हो गया। अभी व्हेन यू डू समथिंग फॉर समवन, तब रियलाइज होता है कि जो प्योर हैप्पीनेस है वो वहीं पर है। जब आप कोई आपको आके बोलता है कि थैंक्स भैया, आपकी वजह से आज मैं ये कर रहा हूँ, तब वो एक जो फीलिंग आती है ना, दैट मोटिवेट्स मी टू डू इट फर्दर, डू इट मोर। तो बस हम लोग ने, जैसे जोनाथन और मैंने एक, हम लोग ने एक घर, हाउस था हमारा, जिसको हमने इंडिपेंडेंट हाउस बनाया। वी कॉल्ड इट एम्पावरिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स। और वहां पर हम लोग ने फिर बाकी व्हीलचेयर यूजर्स को बुलाना शुरू किया। जैसे हम दोनों इंडिपेंडेंट हुए थे, हमने वो सेम ट्रेनिंग उन लोगों को देना शुरू किया। उनको घर पे रखते थे, उनसे कहते थे कि नहीं, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। एक अटेंडेंट होता था, पर उनसे सारे काम उनसे खुद से करवाते थे, उनको दिखाते थे, हम दोनों उनको शो करते थे कि हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। तो वहां से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। हम लोग ने अराउंड 32 व्हीलचेयर यूजर्स को इंडिपेंडेंट किया। वी ब्रॉट देम टू व्हीलचेयर रग्बी। अभी हम लोग के जैसे 4 मेंबर से व्हीलचेयर रग्बी स्टार्ट हुई थी। नाउ वी हैव अराउंड 160 एथलीट्स रजिस्टर्ड विद अस। तो आपने कई बार जोनाथन का नाम लिया, आई थिंक रिसर्च में भी आया था। भाई बात करते हैं, जोनाथन कौन है, आप उनसे कैसे मिले? वो अमेरिका में थे तो इंडिया में कनेक्शन, और फिर कैसे इंडिया की जो आपने बात हुई, आपने घर लिया, क्या है कहानी भाई? मतलब मे बी नेक्स्ट अगर पॉडकास्ट में, आई डोंट नो, ही वुड बी विलिंग, मे बी साथ में अगर, तो बताइए भाई जोनाथन के बारे में, और कैसे आप मिले, और क्या मतलब, और फिर। वही, जैसे जब बोलते हैं कि सारे डोर्स बंद हो जाते हैं तब कहीं से हम्म, एक रे ऑफ हो पाती है, तो मेरे लिए जोनाथन वही है। तो जोनाथन इंडिया में मसूरी में पढ़ता था। maybe let's और go in English because he may understand it, yeah, right? So yeah, let's, yeah, okay, yeah. So that definitely. if you So can share the clip to Jonathan him. is So who's, so maybe let me basically, start the question maybe with Jonathan. So I think yeah. you mentioned about Jonathan a lot because again, this is for him. So this is if he's listening, if he's gonna be watching it. When I was doing Yes. research for my buddy Nikhil, his name came in, and as you're saying, he, if when all the doors close, one door opens. So how did you met Jonathan? How did he inspire you? And then how did you guys connected? Then you became like what you're saying. You have now you have a Indian team, and I don't know, you just came from a Gwalior tournament to Bhai. So let's go for this is just for Jonathan, and Okay. Yeah. what he played in your life, what the role he played in Yes. your life, right? Yes. Yeah. So Jonathan Sigbert is basically from Connecticut, US, Okay, and in 2007 or six, he was in Missouri for okay, his studies. Okay, and okay, then he met with an accident in Missouri. Okay.
and he was initially brought to a hospital in Dehradun, but then he went for his rehabilitation. He went back to US for his rehabilitation. There he had a different the rehabilitation is completely different in US. Okay, and then after 2 years he came back to India. He saw the condition of hospitals in India. Even he visited ISIC, Indian Spinal Injury Center, and he realized that there is no hope for quadriplegic wheelchair users in India. They were not training them well. Okay, what they were thinking, like, these guys are not able to move their hands, they guys are not able to move their even shoulder, wrist, finger. There is no movements. So what they said them, okay, now you have to live with an attendant. Try to get a job if you can. Otherwise, there is no hope for these quadriplegic athletes. Oh, sorry, these quadriplegic wheelchair users. Then he came back. He saw the level of rehabilitation. He showed it to physiotherapists in India, like what a quadriplegic can do. He was able to go up the ramp. He was able to even climbing steps. That was a difficult part for any wheelchair user. He was able to do it. Shifting on a bed independently, shifting to a car independently, even shifting to a auto. That was very difficult for any wheelchair user. He was able to do it. Then physiotherapists realized, like, we can work on quadriplegics also. Okay, so that was the moment when in India the rehabilitation was improved because of him. Because Okay, of him. Okay. because of him. And then he introduced wheelchair rugby in India. He told them, like, there are many games which a wheelchair user can play, and for quadriplegic specifically, there is wheelchair rugby. So from his US team, he brought few wheelchairs in India, which were donated by US team to India for the first time, and then they participated in one of the tournament. It was in Bangalore, where few players from Indian Spinal Injury Center, those were admitted over there. Those went to participate in this game. And then how I met him. So what happened for us? Like I said, that we don't have any urinary control, no control on our bladder and bowels. So there are few equipments which are available. Okay, we have to do CIC. These equipments were available in US. So one of my mentor in ISIC, he suggested me to be in touch with Jonathan Sigberg to get Okay. these equipments. That's how I first emailed him, and then we were in touch. We kept on through emails. We used to chat then through Facebook, and then he said that he is coming back to India. So it was in around 2011 that he was about to come to India. Then I met him, and at same moment, or just give me a second. Just give me a second. Yeah, sure, sure. So when he came back, uh, then we realized, I saw him; he was very independent. So then he told me, "See, Nikhil, there are so many things that you can do if you are willing to." Because even that time, I had the mindset that I am completely dependent on some attendant for everything. Then told me that, see, you have to initiate. First, everything will be very difficult. You won't be able to hold it. Okay, even things will look very difficult, but you have to try. So then after 2011, I thought, let's do very initial things, very small things. I set my aims for a week. Let's do this thing, let's do that thing, and maybe most probably in 5 to 6 months time, then I realized that I can be independent. And 2011 July, I said to my attendant, "See, you have to stay here just for 2 more months. You won't be helping me.
I'll be doing everything of my own. And in case of, like, if I fall from my wheelchair or from my bed, then only you will come to help me. Otherwise, don't touch me for anything. Okay. Okay. So that was for 2 months. I kept doing everything, shifting from my bed to wheelchair, wheelchair to bed, and even to commode. So these are the few things which I kept my high priority aims. And then when I started doing it, then I realized 100% I can be independent. And then October 2011, I said final goodbye to my attendant. And then me and Jonathan, we thought, like, if we can be independent, and why don't give this training to others also. So we started, we took a room on rent, and then we started this house, and we invited other people to stay with us, be independent. And from 2011 to 2015, we had 32 members who stayed with us and became independent. So when you were telling about the Jonathan bhai, Yeah. uh, again I was thinking, if you are Sri Ramji, he maybe was Hanumanji for you, No, no, right? no. Huh? I'll say no. It's not Sri Ram. We can't compare Sri Ram No, Bhagwan. like Yeah. again, we cannot be Bhagwan, but I'm just thinking Yeah. like he was the one who gave you, who helped you become who you are Yes. today, right? Yes. Yes. Huh? Yes. He So, allowed to be independent. and I was I'll thinking say like like it's a guru chela relationship. Guru Chela. Okay, so he's like Yeah. your guru. Yeah. Okay. Uh, and maybe because he had injury in India, and maybe I don't know, like why it's somebody who's in US, and where US is all the facilities and everything is made in that Yes. way, like they can Yes. do everything. Because I'm in US, as you know, bhai, and even like when I was here in 2010, also I saw like that's the difference I saw when I came first time in US. I saw the Yeah. difference. Like Yeah. somebody, as you're saying, somebody can do everything. And I even used to say, like, if you have such thing, this is the country you should be. Like India, I don't think Yes. we. Now you're saying it's changing, now it's improving, but in 10 years, 15 years before, so he didn't have any reason to come back and do what he did, right? Seriously, that, So I'm like, like, that's what God's plan, to send yeah, him back and yeah. change the life of quadriplegic wheelchair users in India. Like he doesn't And have to, right? Like yeah, he had yeah, injury and he definitely, went to definitely. US, and but why Yes. he's working with you? So Yeah. I don't know. Maybe he would have got a lot of thank you from you and your family, but I would say from IET side, I don't think we've had to say thank you to him. So Jonathan, if you're listening, if you're watching this podcast, from our IET, from the college we did the engineering From together with Nikhil all over Bhai. from India. Yeah, all over from India. Thank you. And I'm in US, so maybe I will see if I can connect with you and maybe hear your part of the story for Nikhil Bhai. So Jonathan, thank you. Thank you for what you did. Thank you for yeah, Yes. Yes. doing whatever my bhai is uh, and the things you guys are doing now and inspiring others in India. So thank you, Jonathan. So अभी इंडिया में भी जो प्रॉब्लम है, सभी का हम लोग के साथ जो रहता है इश्यू, आप देखोगे छोटे छोटे घर हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग के हर किसी को अटेंडेंट के लिए एक अलग से रूम मिलेगा। तो mm, जहाँ जितने भी हमारे पेशेंट्स रह रहे हैं, उन्हीं के साथ या तो ये अटेंडेंट हायर करते हैं। तो एक उसका भी, अगर हम देखें, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ट्रीटमेंट अपने आप में इतना ज्यादा फाइनेंशियली किसी भी फैमिली को तोड़ देता है। ठीक है, तो mm, आप पहले ऑलरेडी फिजिकली यू आर ब्रोक, नाउ मेंटली एंड देन फाइनेंशियली, तो हर किसी तरीके से अटैक करता है ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक बंदे की लाइफ को। उसके बाद में जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर आप एक अटेंडेंट को पे कर रहे होते हो, और उसके बाद में भी होता है आपकी प्राइवेसी, कुछ प्राइवेसी नहीं रहती। फिर आप उसी रूम में रह रहे हो, अटेंडेंट भी आपके साथ रह रहा है, किस नेचर का है, क्या उनके अपने, मतलब किस बैकग्राउंड से है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो किसी को mm, भी नॉर्मली झेलना पड़ता है। तो वो सारी चीजें जब हम लोग, फिर यहाँ पर इंडिया में मेंटेलिटी भी क्या है कि अगर हम किसी अटेंडेंट को पे कर रहे हैं, तो हम लोग खुद से कुछ काम नहीं करना चाहते। फिर हम लोग के दिमाग में क्या आता है कि नहीं, अगर मैंने इस अटेंडेंट को पे किया है तो वो मेरे लिए करेगा, मैं क्यों करूंगा ये काम। तो हम जितने भी व्हीलचेयर यूजर्स होते हैं, उन सबको ये उनका माइंडसेट चेंज करना, उनका ये परसेप्शन चेंज करना कि आप, अटेंडेंट सिर्फ आपको एक मूवमेंट पे हेल्प करने के लिए है, जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, उसके अलावा आपको खुद से अपने सारे काम करने हैं। अगर आप ये सोच के बैठे रहेंगे हम लोग कि नहीं अटेंडेंट है वही करेगा, सेम चीज अभी हमारे लाइफ में जितना भी है, अभी हम लोग देख रहे हैं, यूथ है, हर कोई अपना है ना प्रॉब्लम को एक
किसी और का रीजन बना के चलता है कि हमारे यहाँ इंडिया में जॉब्स नहीं है, या फिर हम लोग के पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है। अगर हम और पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि लोगों के पास उससे भी ज्यादा कम फैसिलिटीज थी, उस समय जॉब का भी इतना ज्यादा नहीं था, पर हर कोई स्ट्रगल करता था, अपने आप को इम्प्रूव करता था। तो ये चीज है, हम लोग को दूसरे को ब्लेम करने की जगह हमको अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा हम लोग लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो हम लोग जितना जल्दी आजकल अगर देखें कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर दूसरे को सबसे ब्लेम गेम जो इस समय सबसे ज्यादा वो चीज चलता रहता है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है तो उसका रीजन दूसरा है, मैं नहीं हूँ। हम्म। तो वो चीजें हैं जो अभी हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। भाई आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैं भी बच्चों से बात जो भी है आज के बच्चे, और मुझे लगता था कि अभी का वर्ड थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। वो हमसे ज़्यादा फैसिलिटीज स्मार्ट हैं। इतनी ज्यादा है। हाँ, उनको हाँ। नॉलेज ज़्यादा है, पूरा कंटेंट अवेलेबल है, अभी तो एआई है, सब कुछ है। अभी हम हाँ। लोग के टाइम में नहीं था। आगे वी नॉट निश्चय। सेइंग कि हम लोग बड़ा स्ट्रगल, ठीक है, जो भी था सबका अपना-अपना स्ट्रगल होता है। बट मुझे लगता था ये वर्ड थोड़ा-सा बेटर होना चाहिए। बट अभी बच्चों से बात करता हूँ तो लगता है कि वो और ज़्यादा साइलोड हो गए हैं। मतलब वो और ही मतलब शेयर, जैसे हम तब भी आई थिंक फ्रीली वी कैन शेयर थिंग्स एंड दोस्त हैं जो भी है। तो थोड़ा-सा पता नहीं है, आई ट्राई टू, मैं सोचता हूँ कि ऐसे होता है लाइफ के कि एक एसओपी होनी चाहिए कि भाई ये तो बेसिक्स लर्न, लेसन्स लर्न होने चाहिए। वो आई थिंक शायद नहीं होता। हम लोग भी कहाँ, मतलब बीटेक ने सिखा दिया स्ट्रगल, आपने स्ट्रगल से सीखा है, राइट? वर्सेस देयर सम बेसिक्स व्हिच यू कैन बी ट्रेन्ड ऑन एंड देन यू लर्न फ्रॉम योर स्ट्रगल। तो वो पता नहीं वो कैसे चेंज करें। मे बी मेक श्योर लाइक समबडी लाइक यू लुक अप टू यू एंड मे बी टॉक टू यू, बोलो भी मैं मेंटोर बनिए आप, या मुझे बताइए, या जस्ट हियर, जस्ट लाइक जस्ट लिसन टू व्हाट अदर्स आर डूइंग, हाउ दे हैव कॉन्कर्ड देयर struggles and fears, right? तो भाई आई थिंक हमें लगता है फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक वन पॉडकास्ट इज इनफ। बट चलते हैं आपके, आप कंपनी की बात करते हैं। अगर आपका आई डोंट नो थोड़ा सा वो हो जाता है, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, मे बी वी शुड नॉट डू इट, और एटलीस्ट वो एक पार्ट रहा है आपके, आई थिंक कि दे वर विथ यू अलोंग द इंटायर स्ट्रगल, द यस। फॉल, द राइज। एक वो भी फैक्टर है, राइट? लाइक आई थिंक हैविंग उस पे कितना आप, फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट? एक फाइनेंशियल सपोर्ट इज की। वही एक डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स का अलग अलग, जैसे हम लोग कहें कि हम लोग का उस समय का वर्क किया है, जैसे अब मैं कहता हूँ कि विप्रो था तो मेरा काफी कुछ उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफिस का था, कि मेरे को ऑफिस जाना है, मशीनरी इन्वॉल्वमेंट्स थे, तो वो सारी चीज थी। और एक कल में थोड़ा सा ये ही एक मेरे साथ पॉजिटिव रहा कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेरे को फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना था ऑफिस के लिए। आप रिमोट वर्किंग के लिए भी उसमें कोई इशू नहीं था। तो दैट्स वेयर ओरेकल हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। My managers from US has visited me. They saw my condition. इनिशियली उन सभी को ये लगता है, किसी को भी ये रियलाइज नहीं होता कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है। स्पाइनल हम्म, कॉर्ड इंजरी, सभी मतलब नहीं अवेयरनेस थोड़ा सा सभी को नहीं कम होता नहीं है। है। इट्स फेल लाइक अ नॉर्मल फ्रैक्चर। तो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ कोई मेरे को ऑफिस से कुछ भी किसी ने इस तरह से कोई प्रेशराइज नहीं किया, कोई इतना मेरे ऊपर ऑफिस ज्वाइन करने का कोई इशू नहीं था। तो आफ्टर 6 मंथ मैंने खुद सोचा कि अगर मैं ऐसे ही लेटा रहूंगा तो शायद कुछ नहीं होगा। तब मैंने अपने मैनेजर्स को कांटेक्ट किया कि नाउ इट्स बीन 6 मंथ, आई एम रिकवरिंग, आई वांट टू वर्क फ्रॉम होम। तो Okay. उन्होंने मेरे को अलाउ किया। फर्स्ट थिंग इज दे अलाउड मी टू वर्क फ्रॉम होम। और फिर यहाँ पर हम लोग ने पूरा सेटअप किया। तो इन फर्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर आई कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम होम। एंड देन थोड़ा सा उनको, हर किसी को फील होता है कि भाई आप अगर काम कर रहे हो, यू आर गिविंग ऑल द गुड वर्क, एंड देन कि क्या ऑफिस ज्वाइन किया जा सकता है। देन मैंने थोड़ा सा अपना कंडीशन उनको क्लियर किया कि किस किस क्या क्या मेरे साथ इश्यूज होते हैं। मेरे यूएस से एक मैनेजर थे, उन्होंने विजिट किया, दे सॉ माय कंडीशंस। और उसी के बाद उन्होंने तुरंत मेरे को रिमोट वर्कर का ऑप्शन अवेलेबल कराया। पूरा प्रोसेस हुआ ओरेकल में। और फ्रॉम 2012 आई गेस आई एम वर्किंग एज अ रिमोट वर्कर ओनली। ठीक है, मैं बीच में एक दो बार यहाँ नोएडा भी ब्रांच है ओरेकल की, वहाँ भी गया था। पर उसमें जो कम्यूट टाइम टाइम था, फिर उसके बाद में मेरे साथ जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ जो भी सारा आता है, तो वो दे रियलाइज्ड इट और काफी सपोर्ट किया। और अभी भी काफी, इस समय भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बेस्ट पार्ट था। और जैसे मैंने बोला कि किसी भी बंदे के लिए होता है कि अगर फाइनेंशियली हम्म, अभी सपोर्ट नहीं है तो एक टाइम तक आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, थोड़ा टाइम बाद सबको रियलाइज होता है। सो दैट वाज द गुड गुड पार्ट। मैं बोलूंगा कि मेरी रिकवरी के पीछे भी एक
थोड़ा सा फैक्टर है कि आई वाज विद Oracle and they supported me a lot. That's why I'm still continuing with Oracle. सो आई गेस क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्री कोविड टाइम, जब ये रिमोट जॉब उतनी नॉर्मल नहीं थी, तब भी अभी भी देयर आर मोर रिमोट Yes. जॉब्स नाउ एंड देन आईटी एंड सब कुछ है। बट ये बात है 2008 की, 9 की, 10 की, 11 की, राइट? तो जस्ट फॉर द ऑडियंस, ये Yeah. दिस इज जब वो ये रिमोट वाज नॉट रिमोट, राइट? लाइक यू विल Yeah. हार्डली गेट अ रिमोट Work जॉब, राइट? from home was not an option. इवन इन आईटी देयर इज नॉट ए ऑप्शन, राइट? अभी थोड़ा सा तब भी ओके। सो मे बी ये एक चीज हो सकती है भाई, जैसे आप जो काम कर रहे हैं, मे बी एक होता है हम लोग कैसे गिव बैक करें, तो मे बी अगर ऐसे बच्चे हैं या जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, maybe we can train them into like a technology where they can work from home, right? Do financial Yes. support. So I think I would love to talk about that. कि again, maybe मैं अपने cyber, so I'm into cyber security. तो cyber you can work from home too. So Yes. I know you are doing a lot of good, but we'll talk about that too if we have time today or maybe next episode. But I think कि how do we contribute? Like आप जो कर रहे हो कर ही Yes. रहे हो, बट आई थिंक एक तो आपने का फाइनेंशियल सपोर्ट, एम्पावरमेंट, तो मे बी वो ट्रेन करके स्किल ऐसी बनाएं कि जहाँ पे दे कैन एटलीस्ट वर्क फ्रॉम होम एंड रिमोटली। Yes. तो आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट भाई, मे बी एक्सप्लोर दैट। Sure. Sure. मे Sure. बी साइबर में मैं कर सकता हूँ, मे बी और भी हैं जो और भी हमारे साथ के हैं, सब लोग अच्छे अच्छे जगह पे हैं। तो आई थिंक आईटी एटलीस्ट इज अ बेटर टाइम टू But टू गेट रिमोट yes. इफ यू Yes. हैव अ स्किल, राइट? ओके। तो भाई अब बात करते वापस आते हैं, आप जोनाथन से मिले, आपने पहला बॉल फेंका एंड आई थिंक यू फॉरगॉट अबाउट इट, यू हैड इंजरी। देन मैं पता चला कि आप किसी टूर्नामेंट में गए पहली बार, कुछ कुछ वहां पे हुआ और क्या हुआ, देन यू वन सम अवार्ड, तो उसकी बात करते हैं भाई। आई थिंक उसके बिना आई थिंक वो हमारी एटलीस्ट ये एपिसोड अधूरा रहेगा, तो वह बात करते हैं क्या था वो पहला, कहाँ किस कंट्री में गए और क्या आपने जीता, और भाई बताओ उसके बारे में। तो जैसे ये था कि मैंने बताया कि इंडिया में व्हील चेयर रग्बी 4 प्लेयर्स के साथ स्टार्ट हुई और वो हम 4 प्लेयर्स इसको एज ए पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन ले रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग को 2012 में 2014 में हम लोग को साउथ कोरिया से इनवाइट आता है। जोनाथन क्योंकि यूएस रग्बी से रिलेटेड था, तो उसको वो ईमेल आता है कि इंडिया टीम को साउथ कोरिया डेवलप करना चाहते हैं, अगर इंडिया टीम में कुछ मेंबर्स हैं तो वहाँ हम लोग का जैसे हर टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन फीस रहता है, वो लोग उसको वेव करने को रेडी थे। हम लोग को बस अपना फ्लाइट लेके वहां जाना था। ठीक है। तब तक इंडिया तो के ये पास इसके पहले कभी कुछ नहीं था इंडिया में इसके कोई पहले रग्बी? हम लोग ने इसको बाहर भी नहीं खेला था, सिर्फ हम हॉस्पिटल में ही व्हील चेयर रग्बी को खेलते थे। ठीक है। ओके। तो फर्स्ट टाइम था जब कहीं से हम लोग को डायरेक्ट इनवाइट आया था टूर्नामेंट के लिए। उसके पहले व्हील चेयर रग्बी के रूल्स, कोई कोचिंग नहीं हुई थी, कुछ भी हम लोग को उतना नहीं आइडिया था। तो फर्स्ट ओके। टाइम 4 members without any attendant because we even didn't had any fees for to pay for our attendant। तो हम लोग ओके। 4 बच्चे जो इवन मैं भी, जोनाथन तो यूएस से थोड़ा बहुत आता है फ्लाइट से, हम लोग अब उस समय तक हम लोग ने कोई भी फॉरेन ट्रिप नहीं किया, तो नहीं उतना है। एक्सपीरियंस नहीं था। और फिर उसके बाद में जिस तरह की हम लोग की कंडीशन थी, तो हम लोग यहाँ से साउथ कोरिया हम लोग गए हैं। 4 बच्चे गए हैं अपने आप में, उसमें से भी एक इंजर्ड हुआ था। कब की तो बात है भाई, किस किस ईयर की बात है? 2014 14। 2014। ओके। तो ठीक है। एक मेंबर यहाँ से जाने से पहले ही इंजर्ड हो गया और उसका पूरा फ्लाइट में क्योंकि मैं बड़ा था, वो दोनों मुझसे छोटे थे, उनको पूरा संभालना अपने आप से, मैं अपने आप को भूल गया था कि मैं खुद, मेरे को कोई प्रॉब्लम है। मैं पूरे टाइम उन दोनों बच्चों को संभाल रहा था, उनको उनकी व्हील चेयर अपने आगे लगा के मैं पूरा एयरपोर्ट पे पुश करता था, वो दोनों से बैठे रहते, उनसे व्हील चेयर नहीं चल रही थी, इतना सारे इश्यूज थे। पर और हम बस किसी भी तरह, आप चार लोग हम थे सिर्फ वहाँ? 4 लोग थे। जोनाथन था, तो जोनाथन काफी एक्सपीरियंस्ड है, उसको सारा पता था, तो वो गाइड करता था और हम लोग पीछे उसको फॉलो करते थे। हम लोग फर्स्ट टाइम साउथ कोरिया पहुंचे। बहुत साउथ कोरिया काफी अगर हम बोले डिसेबल्ड फ्रेंडली है, सब कुछ बहुत अच्छा था, पॉजिटिव था, वहाँ के वॉलेंटियर्स बहुत अच्छे थे। जो हमारे साथ एक मेंबर इंजर्ड हुआ था, उसको फर्स्ट डे ही हमें एडमिट करना पड़ा था, और बाकी फिर हम लोग 3 प्लेयर ही बचे हुए थे। तो साउथ कोरिया ने अपने एक प्लेयर को हमारे साथ टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए दिया। हम लोग को वहाँ ट्रेनिंग दी। फर्स्ट टाइम था जब हमको सारे रूल्स पता चले थे व्हील चेयर रग्बी क्या है, क्योंकि अभी तक हम उसको एज ए रिहैब बस नॉर्मली खेल रहे थे। पर फर्स्ट टाइम एक कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना, और वो 3 बच्चे जो पूरा अपना 100% वहां पर लगा रहे हैं, सब कुछ भूल जा रहे हैं। हम लोग कम्पीट कर रहे हैं, हम लोग थाईलैंड को हरा रहे हैं, हम लोग मलेशिया को हरा रहे हैं। पर क्योंकि ये था कि हमारे मैचेस फोरफिटेड थे कि इंडिया 3 ही प्लेयर्स के साथ खेल रहा था, अदरवाइज वो ऐसा होता कि हम फर्स्ट टूर्नामेंट में खेलते और हम शायद सिल्वर मेडल लेकर आते। साउथ ओके। कोरिया टॉप पर था ही। पर पता नहीं, बहुत हर चीज ठीक है, नेगेटिव अलग है, पर उसमें पॉजिटिव बहुत ज्यादा थे। वो फर्स्ट टाइम था जब हम लोग को
एक इंटरनेशनल व्हील चेयर पर बैठकर खेलना, हम लोग जो अपने हमारे पास चेयर्स थी वो सेकंड हैंड डोनेटेड चेयर्स थी ऑलमोस्ट सारी, अगर हम कहीं कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो सारा एक एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलना, उनके कोचेस से ट्रेनिंग लेना, फिर वहां पर जब आपकी ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी होती है और इंडिया का एक फ्लैग आप देखते हो कि वो इंडिया का फ्लैग भी वहां पर है, एक हमारी नेशनल एंथम वहां पर हो रही है, तो वो प्राउड फीलिंग होती है। और फिर उसके बाद में मेरे को वहां पर बेस्ट प्लेयर फॉर टीम इंडिया का अवार्ड मिला, तो वो अवार्ड लेना, वो एक मतलब अभी तक मेरे को और भी अवार्ड मिले हैं पर वो एक है जो मेरा अभी तक सबसे क्लोजेस्ट है। पहला दैट पहला वाज। मेरा अवार्ड था वहां जाके कुछ इंडिया के लिए लेकर आना, बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस। तो है ना, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं, एटलीस्ट नॉट हम लोग, मतलब मैं अपने साइड से, तो आई थिंक एक थैंक यू यहाँ पे साउथ कोरिया को भी जाता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके राइज में आई थिंक जोनाथन, इफ ही वाज लाइक द स्टार्टर एंड द गुरु, देन साउथ कोरिया इज व्हाट यू मेड लाइक द होल फर्स्ट एक्सपीरियंस है फर्स्ट एक्सपीरियंस, द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, एंड इंटरनेशनल। थिंकिंग कि ये भी हम लोग खेल सकते हैं एज एंड बिल्कुल, कैन वही रिप्रेजेंट एज क्योंकि ए अगर इंडियन हम टीम। लोग इंटरनेशनल नहीं गए होते तो शायद ये रहता कि वो एक रिहैब की तरह ही रह जाता, उसको हम्म। हम लोग कभी भी अपनी लाइफ में एज ए प्रॉपर गेम की तरह नहीं ले पाते, या और प्लेयर्स को नहीं अपने साथ में अटैच कर सकते थे क्योंकि वो भी बस उसको एज ए रिहैब लेकर चलते। पर जब भी हम लोग इंटरनेशनल खेल कर आए तब काफी मेंबर्स को लगा, तब काफी हमारे साथ में, जब हम लोग पहले ट्रेनिंग शुरू करते थे तो हमारे पास 5 या 6 प्लेयर्स आते थे, फिर जब हम लोग ने शुरू किया तो हम जैसे दिल्ली बेस था तो हमारे पास बाकी दिल्ली के एनसीआर के मेंबर्स आने शुरू हुए, पंजाब से प्लेयर्स आने शुरू हुए, तो काफी लोग अपने से खुद एफर्ट डाल के, कोई बस से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, वो मेंबर्स हमारे पास आने शुरू हुए, तब ट्रेनिंग करना शुरू हुआ। तो हम लोग ने कैंप लगाए, फिर उसके बाद में हम लोग ने अराउंड 6 अलग अलग स्टेट्स में कैंप्स किए, महाराष्ट्र गए, पंजाब गए, राजस्थान, बिहार, इस तरह से। फिर हम लोग ने पहले जो सिर्फ दिल्ली बेस्ड था गेम, फिर अलग अलग स्टेट में उसको डेवलप किया, वहां से टीम बनाई, फिर हम लोग का फर्स्ट जो नेशनल्स हुए थे वो 2016 अराउंड में हुआ था, 2016 हम लोग के फर्स्ट नेशनल्स हुए थे, और अब हम लोग के 7th, इस बार अभी हम लोग अक्टूबर में हम लोग का 7th नेशनल चैंपियनशिप हुई है, तो 16 स्टेट्स अभी हम लोग के साथ में है। तो मैं वही, जो अभी जो अचीवमेंट है वो यही है कि 4 मेंबर्स से जो रग्बी स्टार्ट हुई थी आज 16 स्टेट्स में खेली जा रही है। इंडिया में भी थोड़ा सा नया गेम है, डेवलपिंग है, पर फिर भी काफी काफी राइज हुआ है व्हील चेयर रग्बी का इंडिया में। और अब फिर से हम लोग के पास सिंगापुर एक टूर्नामेंट है, एशिया ओशो रीजनल चैंपियनशिप, और हम लोग उसमें अगर इंडिया टीम क्वालिफाई करती है देन वी आर क्वालिफाइड फॉर द पैरा एशियन गेम्स 2026। और पैरा एशियन एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम व्हील चेयर रग्बी इंट्रोड्यूस हुई है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया को एक एशियन गेम लेवल पर लेकर जाना। तो आपने भाई पैरा एशियन गेम्स बोला, तो पैरा ओलंपिक्स में नहीं होता अभी ये? पैरालंपिक्स में ऑलरेडी पार्ट है, और ओके। एशियन पैरा एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम व्हील चेयर रग्बी की एंट्री अच्छा, हुई तो थी। कोई कोई अपना ये नेक्स्ट वो है क्या, मतलब विश लिस्ट की भाई पैरा ओलंपिक, ऐसा कुछ सोचा है भाई, कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ड्रीम ड्रीम है क्या ऐसा कुछ कि ड्रीम है। रिप्रेजेंटिंग मैं है, हाँ? जैसे जब से खेल रहा हूँ तब से यही सोचा हुआ है कि मैं अपने जब तक शायद मेरी अब जैसे एज भी हो रही है, तो मैं जब हम्म, रग्बी को छोड़ूंगा, आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑल्सो इन व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ओके। तो एक मैनेजमेंट लेवल पे काम करता रहूंगा, पर एज ए प्लेयर जब छोड़ूं तो शायद एक उस लेवल पे पहुंचा दूं कि खेलना। बाकी टीम को ये डिफिकल्टी ना हो जो अभी हम लोग को हो रही है। ओके। तो सो अभी इक्विपमेंट्स है जो काफी कॉस्टली होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स अभी तक हमें बाकी कंट्रीज जहाँ भी हम गेम्स खेलते हैं वो लोग अपने स्पेयर व्हीलचेयर्स हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो अभी फर्स्ट टारगेट यही है कि हम भी उस तरह के इंटरनेशनल व्हीलचेयर्स इंडिया में लेकर आए। okay, so I think again, just for the South Korea in English, so South Korea, thank you for doing what you did for my buddy Nikhil, and for the rugby, wheelchair rugby, whatever this game came to और India, डेवलपिंग दिस गेम इन इंडिया। developing and helping and giving that first chance to यस। represent our Indian team there in South Korea. So thank you to from IETN, from our college, from all over India, and I don't know if somebody has said, maybe Nikhil would have said thank you multiple times, यस but यस। from our side, from Bharat, from India, thank you South Korea there, and I think I will wish my buddy Nikhil here, he represent India in Paralympic. I would love to watch you playing and winning, and maybe this whole Janagaman listening probably if यस he can, यस। right? So all the best, bhai there. Um, I know we may have to do a second episode, bhai. I think uh, कुछ और ऐसा है जो uh,
आप शेयर करना चाहो? आई थिंक मेरे पास कुछ और भी चीजें हैं, बट मैं जस्ट तो ओपन कुछ। थोड़ा सा आगे मैं आई टेक दिस टाइम टू थैंक मैनी ऑफ क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, माय फैमिली। तो एक्सीडेंट के टाइम पर पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी, सब बहुत पॉजिटिव थे। एक ये भी आप लोग को जब तक वो सपोर्ट नहीं मिलता, काफी फैमिलीज मैंने देखा है जहाँ पर उस चीज को बहुत गलत लिया जा सकता है कि एक्सीडेंट हुआ। और काफी इंडिया में तो ये चीज चलती है कि हमेशा बोलते हैं कि इसके अपने कर्म थे। तो वो हर कोई बोलने को, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिया में सारे लोग ये बात जरूर बोलते हैं। विक्टिम को ही ब्लेम, मतलब विक्टिम को ही ब्लेम बिल्कुल करना है। बिल्कुल कि गलती हम्म, तुम्हारी थी। हम्म, ठीक है। हमारे पास भी जब मैं था यहाँ पर बहुत लोग ऐसे आते थे जो मेरे को ये बोलते थे कि तेरी लाइफ तो अभी खत्म हो गई, या तू आगे क्या करेगा। तो मेरी मॉम बहुत पॉजिटिव थी, वो उनको तुरंत वहां से ले जाती थी बाहर कि अच्छा, ये अभी आपको। लोग बोलते थे हाँ आके? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हर जगह है। तो लोग आते हैं, बोलते हैं कि अभी लाइफ में आगे क्या कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज करो लाइफ के साथ। ऐसे तो मतलब बहुत सारे वर्ड्स थे। तो उस समय वो सब सुनने को मिलता था, पर ठीक है। फैमिली बहुत पॉजिटिव रही, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हमेशा से रहे। और इवन हॉस्पिटल में जब मैं था तब वहाँ विजिट करते थे। तो एक इंसिडेंट था कि एक मशीन होती है, क्योंकि हम लोग जैसे जब एक्सीडेंट के बाद हम कंप्लीटली बेड रिटर्न होते हैं, तो हम लोग कभी भी स्टैंडिंग अगर हम करें तो हमारा बीपी बहुत शूट करता है। तो उसके लिए एक टिल्ट मशीन होती है हॉस्पिटल्स में, जो आपको धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे आपको मूव करती है, लाइक फर्स्ट 45 डिग्री, देन 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करके। तो उस मशीन पे मैं कभी भी 90 डिग्री पर नहीं गया था। 60 डिग्री या 70 डिग्री के बाद ही मेरा बीपी बहुत शूट हो जाता था और मैं एकदम हाइपर हो जाता था। तो मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे कॉलेज, मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, और वो मुझसे बात कर रहे थे। और मेरे फादर धीरे धीरे उस मशीन को 75 डिग्रीज, 80 डिग्रीज करते जा रहे थे। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ अपनी ओल्ड मेमोरीज, हम लोग अपनी कुछ बातें कर रहे थे, और मैं 90 डिग्री पे खड़ा हुआ था। और मेरे को अराउंड 10 to 15 मिनट्स हो गए थे, और मैं बड़े आराम से बातें कर रहा था उनके साथ में। तब वो दोनों मेरे को बोलते हैं कि तू इतने टाइम से ड्रामे कर रहा था, आज तू 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है, तेरे को पता चल रहा है। और मैं जैसे ही मैंने देखा, फिर मैंने चीखना शुरू किया, बोलता है अब शांत हो जाओ, हमें पता है यू कैन डू इट। तो वो मोमेंट्स थे जो हैं कि मेरे फ्रेंड्स जितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, अभी शैलजा माय वाइफ, तो वो बहुत सपोर्ट करती है। तो सभी मेरे, मैं आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन हु आर वेरी क्लोजेस्ट टू मी, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, शैलजा, एवरीवन, थैंक यू सो मच। नहीं, क्यूट फैमिली भाई, थैंक यू। आई थिंक मैं आया था, जब मिला था तो शैलजा एंड आपका भतीजे, आपके मम्मी पापा, और बड़ा अच्छा लगा था। और मैंने एक कोट पढ़ा था वहां पे, आई थिंक वो कोट बताना चाहोगे भाई कि वो फ्लाई वाला कोट क्या था वो, मतलब? ये अभी भी मैं दिखाता हूँ, इस साइड रखा हुआ है। सो उस पर लिखा हुआ है, कांट वॉक बट वी कैन फ्लाई। तो व्हील चेयर पर है, चल नहीं सकते, पर ठीक है, अपने सपनों की उड़ान उड़ सकते। आई थिंक भाई प्रॉमिस करना पड़ेगा। आई थिंक मे बी आपके पूरा जो रग्बी पे हम लोग बात करना चाहेंगे, आई थिंक दूसरे एपिसोड में, बट यहाँ पे आई विल नॉट एक्सटेंड इट। आई थिंक इस पे, आई थिंक दिस देयर इज नो बेटर क्लोजिंग देन सेइंग कांट वॉक बट आई कैन फ्लाई। आई कैन फ्लाई। So thank you, Nikhil bhai. I think you are truly inspiration, and not just for me, for I would say, and many people in India, people like who have similar injuries and struggling. Uh, तो भाई अगर कोई ऐसा बच्चा, कोई मैंने देख रहा हो ऐसा, उसको हो प्रॉब्लम, तो उसको अगर रीच आउट करना हो तो कैसे रीच आउट करे? आपको कोई ऐसा कुछ क्या कैन शेयर, और हम लोग मतलब डाल सकें अपने, वो ऐसा कुछ मैं आपके साथ? और व्हीलचेयर रग्बी का भी सारा सोशल मीडिया पे है, जैसे हम लोग का ओके, इंस्टाग्राम का ओके, है। ओके, और वेबसाइट है हमारी, व्हीलचेयर ओके। रग्बी डॉट इंडिया। और उसके बाद में अगर आप ईमेल करना चाहें तो india.wcrfi@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। और यू कैन टेक माई पर्सनल नंबर, दैट गौरव विल शेयर। ओके, सो क्लोज करने पे भाई एक बात ये बताओ, अभी नेक्स्ट क्या है? मे बी आपका नेक्स्ट क्या है? एंड वी टॉक अबाउट पैरा ओलंपिक, मे बी वो आपका ड्रीम है, बट अभी क्या लाइफ में आपने काफी कुछ फॉल देखा, यू केम बैक, तो अभी ट्रैजेक्टरी आपकी जो है अभी क्या है, मतलब व्हाट इज वन थिंग यू वांट टू डू? अभी जैसे एक विश लिस्ट है, तो काफी सारे एडवेंचर्स हैं जो मेरे को करने हैं। जैसे राइडिंग ड्राइविंग टू गुलमर्ग, हिली ओके, एरिया है। वो एक मेरा ड्रीम था कि मैं हिली तो एरिया ड्राइविंग आपने, मैंने में। कवर नहीं किया, आप फुल ड्राइव करते हो अभी, राइट? यस, हाँ, आई डू हाँ, ओके, ड्राइव। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग ने पैरा मोटरिंग करी है। ठीक है। ओके, राफ्टिंग की है।
अभी जो नेक्स्ट है वो एक स्कूबा डाइविंग और देन हॉट एयर बैलून, और अगर पॉसिबल और हुआ तो बंगी जंपिंग मेरे एक फ्रेंड ने की है, बट इट इज वेरी रिस्की, सो इवन आई एम बिट स्केयर्ड एंड आई इट्स नॉट इन माय विश लिस्ट। तो कुछ है एडवेंचर्स हैं जो अभी भी लाइफ में बहुत सारे करने हैं। तो बस नेक्स्ट 2-3 इयर्स में कुछ कुछ चीज़ें और फुलफिल करनी है, एंड देन व्हील चेयर रख भी उसको बस एक लेवल पर लेकर जाना है। तो नेक्स्ट 2 इयर्स के तो ये कुछ ड्रीम्स है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ मतलब ये चीज बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे हिम्मत नहीं होती। मुझे याद है मैंने वेगस में एक वो है वो करते हैं कुछ तो किया था मैं, तो दैट वाज लाइक माय अनदर, मतलब हिम्मत ही नहीं होती जो जो आपने नाम लिया, स्कूबा डाइविंग एंड ओके ओके। आई थिंक भाई ठीक है, आई विल विश कि आप सारे अपने जो भी आपके ड्रीम फुलफिल करो, ऐसे ही हंसते रहो, यू हैव अ लवली स्माइल, यू हैव अ लवली फैमिली, लवली वाइफ एंड lovely family. I would love to again come and meet you. I know I was there and I यस। feel bad because maybe उस टाइम पे मैं भी कहीं था, पता नहीं कहाँ था, जो भी फेस था, तो I was कोई भी। not there on that time. But I wanted to start my podcast. Sorry, when आप जब पूरी कहानी बताया जब फॉल की, तो I was actually was feeling like I will cry. But thank you भाई for who you are. Um, again, this is not for to do something, this is just to record this thing. I think know more about you. And maybe अगर इससे किसी को हेल्प हो सकती है या नहीं हो सकती, एटलीस्ट मुझे लगता है मेरे खुद के लिए, जब मैं इसको चेरिश करूंगा ये हमारी बहुत सारी मेमोरीज है साथ में। तो हाँ बस ये भी एक लाइफ लॉन्ग हम लोग के साथ रहने वाला है। हाँ, तो वो फोटो वोटो मैं देखूंगा अगर मैं एडिट करके डाल सकूं कहीं पे। बट निखिल भाई, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, कीप फ्लाइंग एज यू आर फ्लाइंग, get your whatever wish, and I would love to see you at Para Olympic and maybe winning a gold medal for India. So थैंक यू सो मच गौरव, वो बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। तो होपफुली हम आईटीएनसी नहीं, और भी काफी लोग हम लोग जुड़ेंगे सबसे। तो विश यू बिल्कुल, गुड लक, कंटिन्यू थैंक यू। करो अपने इस काम और आई को। थिंक आपके भी हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे एम्पावरमेंट अपने साइड से, एवरीबॉडी हैज अ रोल टू प्ले लाइक, तो वो यस स्किल वाले पे आई वुड लव टू कोलैबोरेट भाई, कि जैसे यस आप यस। जो आप कर रहे हो एटलीस्ट स्किल लेवल पे, कि टेक्निकल स्किल, क्योंकि आईटी इज द जॉब, एटलीस्ट somebody who cannot like walk and go to office and all. I think that would be something we would love to. यस तो साइबर यस। में, क्योंकि हम लोग साइबर का बहुत कुछ करते रहते हैं, कि साइबर इज हैज रोल फॉर एवरीबॉडी, तो आई थिंक साइबर वुड बी द वन ऑफ द एरिया आई वुड लव टू हेल्प इन वट एवर वे आई कैन भाई। बट डेफिनेटली बट डेफिनेटली। लव यू, आई नो इट्स संडे की रात है, लेट हो रहा है, मैं नहीं, तो यूएस में बैठा हूँ भाई। ओके। धन्यवाद। थैंक यू सो जय मच। श्री राम एंड जय जय हनुमान श्री। एंड थैंक यू भाई, टेक केयर, लव यू। ओके, लव यू ब्रदर, बाय, टेक केयर, बाय।